कॉल पे चला। गाइस दिख रहा हूँ मैं? Am I audible? Visible? Yes, sir. Yes, yes. Okay. So जब तक सब ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आप लोग को कोई क्वेश्चंस मैं नोट कर लूँ। चैट बॉक्स नहीं है वैसे यार, हाथ से लिखूंगा, मेरे टीम मेंबर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ। हाँ, सो टॉपिक किसने डिसाइड किया आई डोंट नो, बट ठीक है। क्वेश्चंस ही नहीं है यार, ऐसा रुका सुका सेशन करने से अच्छा तो फिर मैं सोचूंगा कि यार सैटरडे कुछ एडिशनल कर लेता मैं। बता दो। सब मैं सेशन एंड होने के बाद क्वेश्चन पूछते हैं और मैं सेशन चालू होने के पहले पूछ रहा हूँ कि इन बिटवीन कवर कर लूँ कि आपके क्वेश्चंस भी आंसर हो जाए। तो किधर नॉलेज हब टीम कहाँ पे है भाई? कैन वी स्टार्ट? 39 हो गया, किसी को कोई क्वेश्चन भी नहीं है तो मैं मेरे ही स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप लोग को कहाँ लगता है कि कहाँ पे लैग करते हो आप लोग कम्युनिकेशन में, या फिर किसी की कोई ऐसे डिफिकल्टी कि उनको लगता है कि वो उसको कम अक्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब उनको पता है, आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पे फंबल हो रहे हैं, यहाँ पे स्टक हो जाते हैं या ब्लैंक हो जाते हैं, बट स्टिल उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ? तो मैं अपने से कोई होम रेमेडी बता पाऊँ आप लोग को? मेरे को सिर्फ दो ही लोग दिख रहे हैं, एक हिरेन संगानी, आयुष, रिया। जी ऐसा दिखता है। Just 63 people. ठीक है, आज के सेशन में कितने लोग टेक अवेज लेके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एटलीस्ट? तो रेज योर हैंड ही कर दो, बोलिना। yeah, hi Krishna, Siddesh this side. हम्म So just I'm facing one issue like mainly communication in drafting the emails. Like in corporate, we have to use specific language, right? When we draft email, because mainly in my process, I deal with the national heads in the banks every time. So, I have some drafts which I have made and got verified through my reporting manager. But not every time I can like tell her not if something a different escalation comes. So not every time I can ask her to okay just check the draft and let me know. So cause corporate mail should be simple and it should not be what can I say. um, Not harsh. The mail should be harsh. That's the thing. I'm just facing a issue. Got your point, Siddesh. So you are from I'm from RSU department. where you sit exactly? Stay at YBL Santa Cruz. Okay. So Siddesh, the thing is like earlier it was a issue for like lot of people, but now I can see like even a person who is just started drafting emails, they are doing very well because the help of chat gpt, and you Okay. don't need anyone's help to draft an email. If you just type two raw lines and just mention please draft an email for me,
It will give you a proper email in a format, and you can also mention 50 words, 100 words in 2 paragraphs. You can give any kind of customization to that chat GPT, and they Okay. will give you a proper solution. And you can identify, take a words and learn from that, like how you were like drafting email, how the chat GPT is giving you answer, and you can take out your own version out of it. And every time you can get a better idea, like how it can done better every email draft. And that will always, like, even at night 12 o'clock you need a help, you can take a chat GPT. And with the experience you'll also get to know how to give a proper input, because the better input you'll give, the better answer you'll get. Yeah. Okay, so that's, I think, not an issue for now, and you will easily learn. And thereafter, if you're facing any So difficulties. cause what happens now, sorry to interrupt, Mhm. like the laptop which I am having, it is phone given by, phone phone For example, I knew you will so going to ask the same question, but think, I am drafting email on Access ka system, Yes Bank ka system, ICICI ka system, right? I have to draft the email, but I have a phone access all the time with me. I just mentioned in the phone, like, I need to draft this email. okay, It will give me a okay, hint, because if you will get a spoon feeding solution draft now, you won't learn anything. okay. You only require a support or a hint how to draft the email, and then you need to Mhm. give your own effort to draft. Otherwise you won't learn. It will give you already solutions. Like, if I get a mid project which is already Mhm. prepared, I won't know how to like, I won't be able to make a presentation out of it in the future. Okay, I Okay. need to put my some efforts to experience the change. Okay, so guys, Okay. I think most of people are in, so we can start. Siddesh, are you okay with Hindi, or you don't Yes, understand? yes, yes. I'm okay. I'm okay. The reason is being that most of people who are here, I think few people don't are not comfortable with English. So I would like to continue in Hindi. No worries, no worries. Okay. Okay. Okay, guys. So before starting, just we'll take a small glimpse ki what is the effective communication as compared to what we on daily basis communicating with each other. Okay, so I'll share my screen with a small clip of a movie, and you guys can share me your experience out of it, what you observe. Okay, okay. So guys, my screen is visible. Yes, yes. Okay, is it audible too? So Simply Learn's Data Scientist Master Certification Program in collaboration with IBM. Is it Get audible, hands-on guys? exposure to key data technologies. वो जी कब तक ये एक एक दो रुपए वाली पुड़िया पाते रहोगे? कोई बड़ी सी दुकान खोल लो। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझे? और कितने सालों तक सब इंस्पेक्टर रहोगे? मैं पिछले 8 सालों से ड्यूटी कर रहा हूँ और आपका बेटा 3 सालों से, लेकिन सैलरी उतनी की उतनी, ना वो रिश्वत लेता है, ना मुझे रिश्वत लेने देता है। रिश्वत के बगैर घर चलता है क्या माँ? मेरे बेटे के बारे में उल्टा कहा तो कॉफी में जहर डाल दूंगी। हाँ, तुम जानते हो अभी तक तुम्हारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? दुकान में फोन करो और सामान के बारे में पूछो। हेलो, सामान आया क्या? हाँ, कब का आ गया? हाँ, आओ ना। दीदी खाना ला रही हूँ। सुनो सिंघम, जी बाबूजी। जरा दुकान पर फोन करो और पूछो सामान आया कि नहीं। जी बाबूजी।
बेटा बैठ के बात करो ना। हाँ ठीक है। बाबूजी 3:30 बजे लॉरी आ गई थी। सब मिला के 48 बोरियां है। 5 चावल की, उड़द दाल की 4, गेहूं की 22, धनिया 2, मिर्ची 2 और नमक की 5। जितना सामान चाहिए था आ गया है। उन्होंने कहा है आप हिसाब करने के लिए शाम को उनकी दुकान पर ही चले जाइएगा, वहीं बात ठीक करेंगे। ये टीचर क्यों नहीं बन रहा? मजूमदार, मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम कहा और तुमने 20 कॉल्स किए। इसने सिर्फ एक फोन किया और 20 चीजें पूछी, इसीलिए तुम अभी तक सब इंस्पेक्टर हो। मजूमदार जी सर। उस कमरे में जो मुजरिम है उसे बाहर So guys, hope it was audible and clear to all. So कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि क्या ऑब्जर्व करा इस क्लिप में उन्होंने? Guys, am I audible? आज जो एक दो लोग दिख रहे थे वो भी नहीं दिख रहे। हेलो। Yes. सिद्धेश बोल रहा हूँ। तो लाइक मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको जो काम बोला था, एक काम बोला था एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो फर्स्ट पर्सन इतना किया कि वो काम हुआ है कि नहीं, एंड द सेकंड पर्सन तो उनको काम बोला था उन्होंने काम हुआ कि नहीं, एंड उसके साथ साथ बाकी डिटेल्स भी पता कर ली कि वो काम क्या हुआ है एग्जैक्टली, लाइक द नंबर ऑफ मटेरियल्स रिसीव्ड। Okay. And थोड़ा how it is और related to communication? सो in terms of communication, वो उन्होंने सिर्फ लाइक हेडर नहीं बताया, जो भी सब्जेक्ट है उसका जो भी कम्युनिकेशन कर रहे पूरा डिटेल के साथ उन्होंने बता दिया। तो जब भी कुछ कम्युनिकेट हम लोग करेंगे तो ऐसा नहीं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ईमेल की बात करते हैं, अगर ईमेल ड्राफ्ट करना है तो सिर्फ ईमेल ड्राफ्ट करना ये बता के मतलब नहीं है, लाइक क्यों ड्राफ्ट कर रहे हैं, और हम लोग जिसको भी बोल रहे हैं उसको ये बताए कि ये क्यों ड्राफ्ट कर रहे हैं, किसके लिए ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, तो उस हिसाब से उसका मैंने ईमेल ड्राफ्टिंग भी हो जाएगा। तो वो कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है कि किस लिए हम लोग वो ईमेल को ड्राफ्ट कर रहे हैं। ईमेल ड्राफ्ट करने से मतलब नहीं, पता ही नहीं क्या ईमेल ड्राफ्ट करना है, किसको लिखना है, उसका मेन सब्जेक्ट क्या है ईमेल का। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Okay, Siddesh, thank you for your inputs. Guys, like as suggested by me in starting only, अगर कैमराज ऑन होंगे तो थोड़ा मुझे भी विजुअली बेटर दिखेगा कि आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं एंड वन वे कम्युनिकेशन अगर करना ही होगा तो फिर मैं भी मेरा कैमरा ऑफ कर दूंगा तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज लाइक अगर आप लोग सच में इंटरेस्टेड हो then you guys can give me your inputs as well, your questions as well. I'll note it down and I'll try to give you my suggestions as well, my experience, whatever I have come across earlier, like मैंने भी वो सारे issues face करे होंगे and then only I like बहुत सारे problems and solutions के बाद ही आया हूँ। और ये जो सेशन हम कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो इंक्लूड नहीं किया सकती क्योंकि ये बहुत ही टाइम स्पैन इसका छोटा है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर पूरा 2 to 3 डेज का सेशन लेंगे तो भी कवर नहीं हो सकता है। ओके, इतना डिटेल है। आपको कम्युनिकेशन सिर्फ बहुत छोटा सा एक वर्ड लग रहा होगा, बट उसके जो इम्पोर्टेंस है, जो रोल है, या फिर जितनी बारीकियां है वो अगर आप सीखोगे तो वो मास्टर करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आपके करियर में भी, पर्सनल लाइफ में भी एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो अगर मैं ऑडिबल नहीं हूँ किसी को तो प्लीज बीच में मुझे बोल देना, तो आई विल कंटिन्यू, ठीक है। तो लेट मी
share my screen with the PPT, what I have like prepared. ये विजिबल है गाइस सबको स्क्रीन? Yes, sir. सो कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन से क्या अंडरस्टैंड करते हो आप लोग कि एग्जैक्टली व्हाट इज कम्युनिकेशन? अगर मैं डिफाइन करने बोलूँ तो आप लोग के वर्ड्स में क्या होगा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन? फॉर मी कम्युनिकेशन इज आप जो इंफॉर्मेशन पास करना चाह रहे हो वो सामने वाले को पूरी तरीके से समझ आए, जो भी आप बोलना चाह रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो। तो कम्युनिकेशन वो है कि आप किसी भी वे में किसी भी मीडियम के थ्रू आप उसको वो इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन। ओके। एंड रिया, ये वीडियो जो क्लिप आपने सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो ये वीडियो मैंने शेयर करा था उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन? Yeah, you are not audible. आई एम ऑडिबल नाउ? Yes. तो क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर क्लैरिटी नहीं होती है तो मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस होते हैं, और जिससे Okay. जो चीज़ आप इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। ओके, सो द थिंग इज कम्युनिकेशन के ऊपर जो हम ठीक है, आप लोग को ज़्यादा इंटरेक्शन करने में बहुत टाइम जा रहा है, तो आई विल स्टार्ट इन वन गो, एंड अगर किसी को कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना बीच में, ठीक है? सो द थिंग इज कि वो जो वीडियो है उसका एक छोटा सा ग्लिम्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मैं कोई भी सेशन लेता हूँ तो उसमें मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कि व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जो वो वीडियो है, ठीक है, उसमें आपको आपके रियल लाइफ एग्जांपल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए जितना रिक्वायरमेंट है। इट शुड बी अ डिटेल कम्युनिकेशन कि उसका पर्पस क्या है। अगर किसी ने एक क्वेश्चन पूछा आपको, या फिर आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्यों पूछ रहे हैं, उसका डिटेल क्या है, और क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो सकती है इन फ्यूचर ऑल्सो, करंटली ऑल्सो, ठीक है? और एंड टू एंड डिटेल कम्युनिकेशन या फिर डिटेल इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए विद क्लैरिटी कि एग्जैक्टली जो भी उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हो सकते हैं वो सारे के सारे अगर आप कवर करते हो तो दैट इज अ इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। इट डजंट मीन कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने वन वर्ड आंसर कर दिया एंड दैट्स इट। लाइक अगर इंटरव्यू में किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा कि आप कैसे आए हो या कैसे आओ, तो आपने बस वन वर्ड आंसर कर दिया कि ट्रेन से, या फिर आप कैसे हो, ठीक हो। सो ये जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है वैसे एंड हो गया, ठीक है? सो दिस शुड नॉट बी द वे। आपकी कम्युनिकेशन आप क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, वहां पे आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो सामने वाले को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से भी, क्योंकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में इतना रुक्का सुक्का एकदम वन वर्ड आंसर दिया है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। वो बोलेगा ठीक है, कोई इशू नहीं, बाय बाय, ठीक है? इन द सेम वे आप डेली बेसिस पे बिजनेस में हो, आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, कलीग से बात कर रहे हो, बॉस से बात कर रहे हो,
इवन बहुत सारे ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जो दूसरे फील्ड में है, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उनको आंसर दिया, कम्युनिकेशन फिनिश हो गई। सो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे कैसे? कोई भी चीज सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी जो आपको आता है। सामने वाला बंदा कंफर्टेबल होगा तो वो अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा, राइट? तो जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप उसको दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लंच कर रहा हूँ, मैं मेरा टिफिन आपको ऑफर करूंगा, तब आप अपना टिफिन मुझे ऑफर करोगे, राइट? इन द सेम वे अगर मैं अपनी लर्निंग्स, नॉलेज या फिर मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा तो आप कंफर्टेबल होगे कि आप अपना नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सको। और इन द सेम वे आई विल गेट टू नो यू वेल, कि मुझे मेरे क्लाइंट्स के बारे में ज्यादा पता है, मुझे मेरे क्लाइंट के बारे में क्या है, इन एंड आउट, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने प्रीवियसली कितने इयर्स तक काम किया है, क्या करा है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं क्या चीज में उसकी हेल्प ले सकता हूँ, या फिर मैं क्या चीज में उसकी वीकनेस है उसको वैल्यू एडिशन सपोर्ट कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। जब आप उसको हेल्प करोगे तो आपकी बॉन्ड क्रिएट होगी। सो दीज आर द वेरी बेसिक्स जो हर किसी को अंडरस्टैंड होने चाहिए, बट स्टिल एज लाइक एक सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर वे में जाते हैं तो ज्यादा कवर कर पाएंगे। सो द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट करने से पहले आई लाइक टू थैंक नॉलेज हब to choose me to present this particular topic, because ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये टॉपिक मुझे शेयर करने मिल रहा है। दैट इज लाइक आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड टू शेयर दिस टॉपिक, बिकॉज ये इतना डिटेल्ड है, इतना डीप है कि इसको पूरा कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो आई एम थैंकिंग नॉलेज हब and I'm thankful for Dreep Garodia as well, because he was continuously taking follow up with me कि ये आपका सेशन है तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, आप ले रहे हो ऑन टाइम। तो आप लोगों को टीच करने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें रिकलेक्ट करी मेरे एक्सपीरियंस से, एंड देन ये बनाते हुए बहुत सारी चीजें मुझे भी वापस से रिकलेक्ट हुई। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। सो communication, so what is communication? Communication is an act of sharing or exchange information, ideas and feelings, ठीक है? तो communication जो कि आप अपना इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन जो भी आप शेयर करते हो, इट कैन बी इन एनी टर्म्स, रिटन, वर्बल, मेल, नॉन वर्बल, जेस्चर, या फिर किसी भी तरह से अगर आप किसी से इंफॉर्मेशन शेयर करते हो या फिर अपने जो भी थॉट्स है वो रखते हो, तो दैट इज अ कम्युनिकेशन, ठीक है? एंड एज आप लोग ने ऑप्स का चार्ट देखा होगा, ASBS का, सो ऑप्स के चार्ट में 9C उन्होंने एक्सप्लेन करे हैं। वो 9C में एक C है कम्युनिकेशन। सो अगर पूरे के पूरे ऑप्स के चार्ट के 9C में एक C कम्युनिकेशन है, तो उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर मैं समझूं कि एक कंपनी की वैल्यूज का 9 पिलर्स है, उसमें से एक कम्युनिकेशन है, तो उस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है कि वो यूटिलाइज करके आप लाइफ में कितनी सक्सेस अचीव कर सकते हो, या कि पूरे फर्म के स्ट्रक्चर में वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर वो एक स्किल में अगर आप इम्प्रूव करते हो तो आप बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंस पे जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को इजीली एक्सचेंज कर सकते हो, जो कि अगर सिर्फ आपके पास पड़ी है, किसी और के पास पड़ी है, वो यूटिलाइज भी नहीं कर रहे, बट वो इंफॉर्मेशन या वो नॉलेज अगर मेरे पास है तो आई कैन मेक अ यूज ऑफ इट, ओके? तो और इसमें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आई एम गिविंग इंफॉर्मेशन या नॉलेज टू समवन एल्स, सामने वाला बंदा कंफर्टेबल होगा तो मुझे भी सिखाएगा, राइट? तो मेरी खुद की भी लर्निंग बढ़ेगी। सेकेंड इज बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। अगर आपकी बॉन्ड आपके कलीग के साथ कैसी है, आपके लीडर के साथ कैसी है, आपके क्लाइंट के साथ कैसी है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है उनके साथ। आप जितना वेल कम्युनिकेट कर पा रहे हो उतनी अच्छी बॉन्ड आप क्रिएट कर पा रहे हो। और बॉन्ड के कितने एडवांटेजेस आप ले सकते हो, वो तो जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो खुद ही फील कर सकते हैं, और जो न्यू बंदे हैं वो दूसरों को देख सकते हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बाद जो उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्लाइंट को इतने सारे रिक्वेस्ट करने के बाद भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, बट जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो सालों से उनके साथ रिलेशन या बॉन्ड बनी हुई है, वो सिर्फ एक कॉल या एक मैसेज पे वो डन होता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, एंड उसका फाउंडेशन ही कम्युनिकेशन है, ओके?
देन नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट, जो आप देखोगे कि मेजर कंफ्यूजन्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन टीम लीडर्स या फिर लीडर के अंडर में जो काम कर रहे हैं या फिर मैनेजमेंट के साथ जो कम्युनिकेशन गैप होता है, वो सारे के सारे क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ पे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ एक ही टीम के पास है, दूसरी टीम के पास नहीं है, या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई है। तो ये सारे के सारे इश्यूज आते हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, जो सामने से मैनेजमेंट से टॉप लेवल से आ रहा है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहा है, जो ग्राउंड लेवल का फीडबैक है वो टॉप लेवल तक जा रहा है, सो ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेटर कम्युनिकेशन। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? लाइक मैक्सिमम लोगों ने ये देखा होगा, ऐसा सुना भी होगा कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम को पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं तो 50% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। हाउ? एटलीस्ट वी हैव आइडेंटिफाइड द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है क्यों। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंट्रा कम्युनिकेशन, कि हम खुद के साथ कम्युनिकेशन कितना अच्छा बेटर कर पा रहे हैं, कि मेरे ब्रेन में जो चीज़ है मैं कितना उसको एनालाइज कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो उससे ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि यू नो एक्चुअल प्रॉब्लम। बहुत टाइम ऐसे होता है कि हम एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस किए जा रहे हैं और वो कभी फिनिश ही नहीं होगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। वो कैसे होगा? आप उनको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस देते जा रहे हो, वो कभी एंड नहीं होने। कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है। 10 तरह के एक्सक्यूजेस आते हैं लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कोई बताता नहीं जल्दी, तो वो कम्युनिकेशन गैप है। ओके, जो कि इजीली सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट इज सक्सेस इन द वर्क प्लेस। कम्युनिकेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज कि आप सक्सेस हो सकते हो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। हाउ? आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत एक्सीलेंट हो, बहुत अच्छा वर्क करते हो, लेकिन आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो, लोगों को पता ही नहीं आप कितने अच्छे हो, तो आप कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही मिस कर देते हो। बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपसे इसलिए मिस हो जाती है क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे। तो दैट इज द वीक पॉइंट, कि अगर आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो, इवन दो आप ज्यादा एलिजिबल हो। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो यू नीड टू कम्युनिकेट। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनल डेवलपमेंट। तो कम्युनिकेशन से पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर आप जितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो उतने ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकते हो उतना ज्यादा अपडेटेड रह सकते हो। लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट नॉलेज, जीके, और आपकी पर्सनालिटी में आपका नॉलेज इज अ मस्ट, तो वो आपको कम्युनिकेशन से पता चलता है। ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि भाई यूट्यूब पे लोग वीडियो बना के इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, इतने मिलियन फॉलोवर्स हो गए, इतना पैसा अर्न कर लिया उन्होंने, इतने सारी गाड़ियां ले ली। तो ये सब कैसे हो रहा है? लोगों को इन्फ्लुएंस करके, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, पैशन है। सो ये कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विद कैमरा, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विद देयर फॉलोवर्स, दे नो हाउ टू एडवर्टाइज। तो ये सारी चीजें करके अगर वो इतना अर्न कर सकते हैं तो आगे जाके बहुत सारी चीजें, अपॉर्चुनिटीज उनके पास बाय डिफॉल्ट चल के आती है, बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस पीपल। एंड उनके एग्जाम्पल्स छोड़ो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या फिर बिजनेस में मार्केटिंग कंपनीज, वो कैसे चल रहे हैं? इन्फ्लुएंस करके, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया, इसके थ्रू। इवन जो वोटिंग होती है, आप हमारे यहाँ पे वोट करके एमपी, एमएलए, यहाँ तक कि पीएम भी ऐसे ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेट करना जानते हैं, पब्लिक को क्या रिक्वायरमेंट है, पब्लिक की अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज, अपने पॉलिसीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों को फील करवा सकते हैं। सो दिस इज द वे कि आप कम्युनिकेट करके मोस्ट टॉप लेवल तक पहुंच सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज अ मस्ट। अगर बंदे के पास कम्युनिकेशन ही नहीं है और कितनी भी अच्छे काम कर ले वो, अगर वो उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता तो फेल हो जाएगा।
इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। कल्चर एंड सोशल इंटीग्रेशन। कल्चर से यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे कि सीसी टीम है हमारे पास, ठीक है, कल्चरल टीम है, वो विदाउट कम्युनिकेशन किस तरह से अपना जितने भी उनके पास आइडियाज है, रूल्स है, पॉलिसीज है, उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। उसके लिए कम्युनिकेशन इज अ मस्ट। विदाउट कम्युनिकेशन आप मैसेज ही नहीं पास ऑन कर सकते हो, तो कैसे आप करोगे कनेक्ट। और यहाँ पे इस चीज से ऐसे भी आता है कि आपकी जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, उस सोसाइटी से अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो तो आप उससे डिस्कनेक्टेड होगे। डिस्कनेक्टेड पर्सन वो किस तरह से अपने रूट्स के साथ में जुड़ा रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ट्रेडिशनल टू ट्रेडिशनल नॉलेज पास ऑन होते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, वो अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो पास ऑन नहीं हो सकती। बहुत सारी चीजें ऐसे इंफॉर्मेशन या नॉलेज है जो ऐसे ही लैप्स हो जाएंगे, आगे वाली जनरेशन को मिलेंगे ही नहीं। ओके, अभी नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे एक है सोलोमन आइलैंड का। ये आप लोगों ने शायद से सुना भी होगा कि एक मूवी आई थी तारे जमीन पर। कितने लोगों ने देखा था? देखा ही होगा, ठीक है। तो उसमें आमिर खान ने एक एग्जाम्पल दिया था कि देयर इज आइलैंड। वो आइलैंड में उस आइलैंड का नाम है सोलोमन आइलैंड। वहां पे लोगों को जब भी पेड़ों को कट करना होता है तो उसको कट नहीं करते, लोग वहां पे जमा होकर उसको गालियां देते हैं और उसके बाद वो पेड़ अपने आप सूख जाता है। सो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन का कि जो ट्री सिर्फ गालियां सुन के, तो इसी को हम इस वे में ले सकते हैं कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो लोग बोलते हैं कि उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करो, उसको खुश रखो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन हील ऑल्सो। जो पेशेंट्स हैं, जो बीमार है, जो अच्छा नहीं फील कर पा रहे, कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको सिर्फ ये चाहिए होता है कोई बैठ के उनकी बात सुन ले और उनका पूरा जो स्ट्रेस है वो रिलीफ हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, बंदे को कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप उसके हीलिंग में भी उसकी हेल्प कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज अ ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टी कल्चरलिज्म। ओके, तो अगर आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो तो आप अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा रहेगा कि हमारे जो पीएम है वो सारे कंट्रीज के पीएम से उनकी इतनी अच्छी बॉन्ड है, वो इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स पे जाके इतने सारे फॉरेन पॉलिसीज में, जो हमारे ही लोग फॉरेन में एज ए एनआरआई रह रहे हैं, उनके लिए कितने सारी इजी चीजें कर पा रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। सो ये एक मीडियम है कम्युनिकेशन का कि आप उसके कितने एडवांटेजेस ले सकते हो। ये जो मैंने लिखे हैं ये बहुत ही कम है, इससे भी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। अगर वो हम खाली काउंट करते जाएंगे ना तो पूरा डे चले जाएगा, ठीक है। तो इसको कंक्लूड करता हूँ मैं। लास्ट में एक और है सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। सो इसमें कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज आता है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में राइट टाइम पे राइट कम्युनिकेशन आप किसी को प्रोवाइड करते हो तो वो किसी की लाइफ एंड डेथ का भी सिचुएशन हो सकता है, किसी की लाइफ भी बच सकती है। अगर सही टाइम पे आप कम्युनिकेट करो राइट चीजें तो वो चीज किसी की जान भी बचा सकती है। आपने देखा होगा किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है, डॉक्टर को कनेक्ट करो, डॉक्टर ने कॉल पे आपको प्रिस्क्रिप्शन, हेल्प या फर्स्ट एड एक्सप्लेन करा और आपने अंडरस्टैंड करके वो चीज करा तो किसी की जान भी बच सकती है। राइट टाइम पे किसी को आप पुलिस को कॉल करके हेल्प मांग रहे हो और आप कम्युनिकेट करके उसको एग्जैक्ट सिचुएशन बता पा रहे हो तो वो किसी की जान भी बचा सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि इम्पोर्टेंस है, एंड ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं भी लिखे क्योंकि टाइम कंस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंस है वो अभी तक क्लियर है लोगों को? अगर आप हैंड्स अप करेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर नेक्स्ट। ओके, ठीक है। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो चलो इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है। अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज लाइक मैंने मैसेज पास ऑफ कर दिया। अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन और नॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम करते हैं आज के टाइम पे, इट्स लाइक मैंने बोल दिया, मेरा काम फिनिश हो गया, ठीक है।
मैंने ईमेल सेंड कर दिया, मेरा काम फिनिश हो गया। मैंने आपको बात बता दी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई। दैट इज द नॉर्मल कम्युनिकेशन नाउ डेज वी डू। बट व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? कोई सजेस्ट कर पाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या है उसमें? ये किसी ने आंसर करा है? हाँ अर्चना, आप कुछ बोलना चाहते हो? सर, हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को कंप्लीटली समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और वो भी उसके ऊपर एक उसके हिसाब से वो भी हमने जो कम्युनिकेट किया उसके हिसाब से वो भी उसके ऊपर रेस्पॉन्ड कर सके। Right, Ashwin. जब So effective communication is like making sure कि जो आप बोल रहे हो वो end to end वो pass on भी हो रहा है। मतलब अगर मैंने कुछ बोला तो I'll make sure कि सामने वाले को समझ में भी आया है, ठीक है? तो communication is not only I am communicating to you, I'll make sure कि आपको समझ में भी आया, वो end to end properly pass on हुआ है, okay? So that is a effective communication। और उसमें कितनी डिटेल्स में पास ऑन कर सकता हूँ जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वे में आपको वन टाइम में समझ में आ जाए, ठीक है? देन इसमें यही मेक श्योर करना है कि सामने हम जो बोलना चाहते हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है? सो दीज वर द इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ द थिंग इज कि एग्जैक्टली ये सारी इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया, बट मैं मेरी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करूँ, मैं किस तरह से बेटर कम्युनिकेटर बनूं, और वो मेरी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा। ये सेशन का मेन पर्पस ही यही है कि हर बंदा अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर पाए, ओके? तो उस पर थोड़ा जाते हैं हम कि क्या कर सकते हैं। तो हाउ टू बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अवेयरनेस बढ़ानी है खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? कि हमें हमारे बारे में कितना पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है, गोल्स को अचीव करना है, तो पहले आपको करंट सिचुएशन पता होनी चाहिए कि मैं आज के टाइम पे कहाँ पे स्टैंड करता हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है। देन ओनली मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करके अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आ पाऊंगा। सो एक कॉन्सेप्ट है जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट। ये कितने लोगों को पता है या फिर किसी ने अभी तक सुना है इसके बारे में? नो, ओके गाइस। सो द नेम जोहारी, ठीक है, ये कंबाइंस द साइकोलॉजिस्ट जोसेफ एंड हैरी, ऐसे करके दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, एंड ये कॉन्सेप्ट का नाम उन्होंने रखा जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट। सो इसमें रिटर्न में बहुत सारी चीजें लिखी है, अब उसके ऊपर ना जाओ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता। टेबल्स 4 मैंने बनाए हैं यहाँ पे। तो इसमें आप देखोगे कि ऊपर लिखा हुआ है नो टू योर सेल्फ, नो टू सेल्फ, अननोन टू सेल्फ, एंड लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है नो टू अदर्स, अननोन टू अदर्स, ठीक है? और यहाँ पे जो ये 4 बॉक्स है, ये चारों बॉक्स इसका कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो फर्स्ट बॉक्स है वहाँ पे ये कंबाइन है कॉम्बिनेशन ऑफ नो टू सेल्फ एंड नो टू अदर्स। मतलब जब आप कम्युनिकेशन करते हो किसी के साथ में या फिर दो लोगों के साथ में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बारे में आपको भी पता है और लोगों को भी पता है, ठीक है? ये मतलब अपने आप को देखने के लिए एक विंडोज है ये 4, ठीक है? इसी को बोलते हैं जोहारी विंडो। विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4, ठीक है? तो फर्स्ट विंडो से आप क्या देखते हो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को भी आपके बारे में पता है और आपको भी आपके बारे में पता है। आप ये टेबल खुद भी बना सकते हो और ये टेबल में फील कर सकते हो टेबल 1 में कि मेरे बारे में ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे भी पता है, लोगों को भी पता है। लाइक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज, अचीवमेंट्स, फेलियर्स, मेरे को क्या आता है या फिर क्या नहीं आता है। देन सेकेंड टेबल में आता है अननोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। दिस इज अ ब्लाइंड सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल खुद को मुझे नहीं पता है बट लोगों को पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज कपड़े पहने हैं और मैं कैसा दिख रहा हूँ मुझे मेरे बारे में पता नहीं है। मैं अगर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मेरी प्रेजेंटेशन कैसी है, मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं,
मेरी टोन कैसी है, मेरा पिच कैसा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वहां पे मैंने कौन कौन से वर्ड्स बहुत टाइम रिपीट किए जो नहीं करने चाहिए। तो छोटी छोटी बारीक फीडबैक्स है वो मुझे खुद को नहीं रियलाइज होता है, बट सामने वाले को पता होता है। ओके, सामने वाला मुझे जितना ऑब्जर्व कर सकता है वो ऑब्जर्वेशंस हम खुद के लिए नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होता है हमारे वर्किंग में। सो ये सेकंड विंडो में वो कवर होता है कि कौन सी चीज है जो मुझे खुद के बारे में नहीं पता है बट लोगों को पता है, और ये हम कैसे कवर कर सकते हैं, फीडबैक लेके। आप लोगों से फीडबैक लो खुद के बारे में कि मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, ये मैं टॉपिक पे बोलने वाला हूँ, या ये सारी चीजें है, इसके ऊपर आपका क्या फीडबैक है। या फिर मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी आपको लगता है आपके सीनियर्स है या फिर जो भी आपके साथ में काम करने वाला कलीग है जिसके आपको कॉन्फिडेंट है, ब्रदर, फैमिली, कोई भी जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, उससे आप फीडबैक ले सकते हो। देन थर्ड इज हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ मीन्स व्हाट, कि आपको कुछ ऐसी चीजें जो आपके बारे में पता है लेकिन लोगों को नहीं पता है। आपके बहुत सारे ऐसे वीकनेसेस हैं जो आपको पता है लोगों को नहीं पता है, आप वो किसी को बताना भी कंफर्टेबल नहीं होते हो कि मुझे ये चीज नहीं आती लेकिन मैं शेयर करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो दीज आर द फैक्ट्स जो सिर्फ आपको ही पता है। सो ये हिडन फैक्ट्स भी आप लिख सकते हो वहां पर, और फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हिडन फैक्ट्स है, ये वीकनेस है, ये पॉइंट्स है मेरे जो किसी को पता नहीं है। तो अगर वो क्वालिटीज वहां पे लिख रहे हो, जो क्वालिटीज सिर्फ आपको पता है लोगों को नहीं पता है, वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। अगर वो आपकी वीकनेसेस है जो सिर्फ आपको पता है लोगों को नहीं पता है, तो आप उसके ऊपर काम करके इम्प्रूव कर सकते हो। या तो फिर जो जिनके ऊपर आपको भरोसा है उनको शेयर करके उनकी हेल्प ले सकते हो कि मेरी ये वीकनेसेस है, मेरे को इम्प्रूव करनी है। सो दिस इज द थर्ड टेबल। एंड फोर्थ वन इज अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ मीन्स व्हाट, कुछ ऐसी चीजें जो आपको भी पता नहीं है आपके बारे में और लोगों को भी पता नहीं है आपके बारे में। विच मीन्स कि आपकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है जो आपने आज तक रियलाइज ही नहीं करी, ना ही आपके सराउंड में किसी ने रियलाइज करी है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप ये चीज कर सकते हो, और आपको आपके बारे में ही पता नहीं है अच्छे से। तो आप वो सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है जो आपको इनिशियली लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, या आपके आसपास के लोगों को भी लगता है कि यार ये बंदा तो कर ही नहीं पाएगा, इससे होगा ही नहीं। बट जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आप बेस्ट आपको परफॉर्म करते हो वहाँ पे, तो आपको रियलाइज होता है कि अरे मेरे को ये चीज भी आती है या फिर मैं ये चीज भी कर सकता हूँ। सो दीज आर द हिडन टैलेंट्स व्हाट यू कैरी, बट आप वो चीज से अनअवेयर हो। तो वो सारी चीजें आप उस टेबल में आइडेंटिफाई करके एक एक करके लिख सकते हो कि, और वो कैसे पता चलेगा, ये जो लास्ट वाला बॉक्स है अननोन सेल्फ, वो कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसके बारे में। वो एक्सप्लोर करने के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा 10 थिंग्स, 15 थिंग्स, 20 थिंग्स। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये सारी चीजें भी आपको आती है कि नहीं। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई करते रहना है, ठीक है। सो दिस वो द थिंग कि आपका करंट स्टेटस, कि आप कितने कैपेबल हो, आपको कितना आता है, या फिर क्या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है, और आप किस चीज में अच्छे हो जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए, वो आप इस कॉन्सेप्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इससे आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी खुद के साथ और लोगों के साथ भी, क्योंकि आप खुद से ही कम्युनिकेट नहीं करते हो, खुद को ही नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो दूसरे को कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर विथ योरसेल्फ की what you know, what you don't know, and what you want to improve. Okay, so this is the Johari window concept to understand yourself, where you stand and what you need to improve. Okay, so this was the first point, to improve your communication, to identify yourself, self awareness. ठीक है, so next concept पे आते हैं कि किस तरह से आप अपना कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हो, दैट इज त्रिकरण शुद्धि। एंड व्हाट इज त्रिकरण शुद्धि? आई डोंट नो ये कम्युनिकेशन में आप लोग ने कभी पढ़ा होगा कि नहीं, ये कम्युनिकेशन का शायद पार्ट भी नहीं है, बट दिस इज अ माय अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स कम्युनिकेशन कि एग्जैक्टली ये किस तरह से वर्क करता है। एंड ये जो स्टेटमेंट है मनसा वाचा कर्मणा, ये स्टेटमेंट इतना फेमस है, या फिर इतने सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं। इट्स लाइक मनसा मीन्स योर थॉट्स, जो आप सोचते हो, वाचा मीन्स जो आप बोलते हो, एंड कर्मणा मीन्स जो आप करते हो। ठीक है,
तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी एक्टिविटीज करते हो वो एक्टिविटीज के बारे में आप बातें करते हो और वो आपके थॉट्स का पार्ट हो जाती है। इन द सेम वे, जो आप सोचते हो वही आप बोल सकते हो, एंड फिर जो आप बोलते हो वही आपकी एक्टिविटीज आप कर सकते हो आगे। ठीक है, सो इसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए नीचे एक स्टेटमेंट है कि आपके अपने खुद के विचारों पर ध्यान दें। मतलब जो आप सोचते हो, आपके थॉट्स के बारे में आप सोचो थोड़ा कि आपको किस किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो। नेगेटिव थॉट्स है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या फिर क्रिएटिव है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो आप, तो उसके ऊपर फोकस करो कि आपका फोकस कहाँ पे जा रहा है। जैसे ग्लास ऑफ वाटर में आप सोचते हो कि ग्लास आधा खाली है, कोई बंदा सोचता है ग्लास आधा भरा हुआ है, और कोई बंदा सोचता है एटलीस्ट हमारे पास ग्लास तो है। सो दिस इज द थिंग कि आपका थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करता है, आप क्या सोचते हो। बिकॉज जो आप सोचते हो एट द एंड उसी के बारे में आप बात करोगे, आपके वर्ड्स में वही आएगा, एंड एट द एंड जो आप बातें करते हो आपके एक्शंस भी उसी तरह से होते हैं। होप सो गाइस आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं वही बोलूंगा, और जो मैं बोल रहा हूँ मैं वही करूंगा, राइट? क्योंकि मेरे थॉट्स लिमिटेड है तो मेरे वर्ड्स भी लिमिटेड होंगे, और अगर मेरे वर्ड्स ही लिमिटेड है तो मेरे एक्शंस तो कभी भी बियॉन्ड उसकी लिमिट के जा ही नहीं सकते। तो इफ यू वांट टू एक्सपांड या फिर ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को ग्रो करो, उसको प्योरीफाई करो, निगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो एंड पॉजिटिव थॉट्स को लेके आओ, एंड जो आप बोलते हो वर्ड्स उसके अंदर भी पॉजिटिविटी लेके आओ, खुद को इम्प्रूव करो, इनकरेज करो, एंड देन आपके जो वर्ड एक्शंस हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। तो ये तीनों चीजों पे अगर आप वर्क करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी। एंड दिस इज नॉट अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट ओवरऑल, बिकॉज कम्युनिकेशन में सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ आप क्या सुन रहे हो दैट इज नॉट इंक्लूडेड। कम्युनिकेशन में बहुत सारी एक्सटर्नल चीजें आती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, आपके एक्सप्रेशंस क्या है, आपका टोन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इवन आई एम speaking you nicely using a correct words, but my thoughts आपको लेकर मेरे थॉट्स कुछ अच्छे नहीं है, आई थिंक नेगेटिव अबाउट यू। मैं कितने भी प्यार से कोई भी वर्ड्स यूज करूं लेकिन मेरे वो टोन में, वो पिच में वो मैजिक कभी आएगा ही नहीं कि मैं पोलाइटली आपको कनेक्ट कर पाऊं। मेरे वाइब्स हमेशा नेगेटिव होंगे आपको लेके, तो मैं कितने भी पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर लूं वो कभी भी वो मैजिक क्रिएट नहीं कर सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके थॉट्स क्लियर रखने हैं, नो ग्रजेस। आपको कोई बंदा एकदम ही नहीं पसंद है बट स्टिल आप उसको लिए ग्रजेस लेके उसको अच्छी तरीके से आप सोचोगे कि मैं जाके उससे बात करूं, दैट विल बी आर्टिफिशियल ऑल द टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके थॉट्स के अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है, सारे सबके लिए बेनिफिट सोचोगे, अच्छा सोच अगर आपके बेनिफिट की बात करोगे तो आपके वर्ड्स में वो अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो बोलता ना एक्सटर्नल एक्स फैक्टर, कि आप कोई पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं ऐड कर रहे हो बट उसके अंदर वो मैजिक आ रहा है, वो ऐसे ही आता है, वाइब्स जो इनविजिबल होती है। ठीक है, तो वो आपके वर्ड्स में बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्ट करेंगी। जो बंदा पैशनेट होता है अपने वर्ड्स को लेके, अपने स्पीच को लेके या फिर अपने वर्क को लेके, उसको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, वो एफर्ट अपने आप अंदर से आता है। तो वो ऐसे आता है क्योंकि उसको थॉट वो चीज को लेके पॉजिटिव और पैशनेट है। इस तरह से आपके जो वर्ड्स है वो स्ट्रांग बनेंगे एंड बाद में आपके एक्शंस। फॉर एग्जांपल, आप अच्छा अच्छा बोल तो रहे हो, अच्छा अच्छा सोच तो रहे हो, लेकिन घर पे बैठ के बेड पे लेट के आराम से सोच रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं घर पे बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं जिम जा रहा हूँ, उससे मेरी बॉडी नहीं बनने वाली है, या फिर मैं आपके बारे में अच्छा अच्छा सोच रहा हूँ, उससे आपको या मेरे कम्युनिकेशन वर्ड्स या रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं आने वाला है। उसको एट द एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे एक्शंस लेने होंगे, मुझे कम्युनिकेट करना होगा, मुझे जो चीज कमिटमेंट मैंने करी है वो फुलफिल करनी होगी। ठीक है, सो ये जो तीन चीजें हैं ये इतना मैटर करता है कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपका चेंज कर सकता है कम्युनिकेशन को लेके। आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो। बिकॉज आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो बट कर नहीं रहे हो, ये तीनों में से एक भी चीज अगर मिसिंग है तो यू कांट क्रिएट अ मैजिक।
तो वो चीज के लिए आपको ये तीनों चीजों को बैलेंस करना होगा, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, शाहरुख खान का एक डायलॉग भी सुना होगा कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो आपको पूरी कायनात मिल जाती है, राइट। तो ये चीज इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको अगर आप रीड करो तो मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वह हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अतः हमें सदा शुभ चीजों का चिंतन करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज लाइक कि अगर आप अपने एक्शंस से किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी सोच, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस तीनों में वो चीज हो रही है, ठीक है। आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपको कोई पोजीशन क्रैक करनी है, आपको लाइफ में कुछ चीज अचीव करनी है, उस चीज को आप इन तीनों चीजों से अट्रैक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। तो ये तीन चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप सिस्टम में इनलाइन हो जाएगी, ओके। लग रहा नहीं है मुझे, मेरे को ऐसा वन वे कम्युनिकेशन लग रहा है, ठीक है गाइस। वैसे तो मैं सोच रहा था कम्युनिकेशन के ऊपर कोई नेक्स्ट सेशन भी रखेंगे हम, बट लोगों को इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो इसको यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। चलो इस त्रिकरण शुद्धि की ये तीन चीजों को हमको प्योरीफाई करना है और उसके अंदर हमको वर्क करना है। देन थर्ड इज एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर कैसे बनेंगे हम? क्योंकि जब तक हम लोगों की सुनेंगे नहीं तब तक हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो और उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले ही नहीं रहे हो और सिर्फ अपनी ही बातें किए जा रहे हो तो वो चीज कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। सो दिस इज द थिंग कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन करना होगा वो बंदे को, उसके प्रॉब्लम्स को, या फिर वो बंदा क्या बोलना चाहता है। एंड एक्टिव लिसनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ, आज ये मैं सेशन ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस सेशन से मैं वही चीजें बोल रहा हूँ जो मुझे ऑलरेडी आती है या जो चीजें मुझे पता है। बट अगर मैं सुनता हूँ लोगों को तो माइट भी वो चार चीजें ऐसी बोल दे जो मुझे नहीं पता है और वो मेरे नॉलेज की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा कि मैंने कुछ नया सीख लिया। लेकिन मैं बार बार अपनी चीजें बोलते रहूंगा तो माइट भी मैं उसमें एक्सीलेंस हो जाऊं लेकिन उसमें कुछ भी नया ऐड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं ये सेशन ले रहा हूँ, आप लोग कुछ इनपुट दे नहीं रहे हो तो मे बी ये सेशन के लिए मैंने जितना प्रिपरेशन करा है आई नो दैट मच ओनली एंड आई कैन प्रेजेंट दैट मच ओनली। बट आप लोग कोई वैलिडेशन नहीं कर रहे हो तो शायद मेरे लिए कुछ एडिशनल लर्निंग ना हो पाए। बट स्टिल एंड देयर आर फ्यू टिप्स कि आप एक्टिव लिसनर कैसे बन सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पीकर है उससे आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है जिससे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। एंड नेक्स्ट इज लिसन टू नॉन वर्बल क्यूज टू। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात कर रहे हो और वो बंदा कंफर्टेबल नहीं है स्टैंडिंग में या फिर किसी और तरीके से, सो आप उसके बॉडी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करो एंड उसको कंफर्टेबल करवाओ या फिर वो क्या बोलना चाहता है। बहुत टाइम कोई बंदा आपको ना बोल नहीं सक रहा है ओरली बट वो बंदा कंफर्टेबल नहीं है तो यू हैव टू take a cues also. For example, someone want to leave early, someone want to go for a meeting, but आप उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाओगे कि ये बंदे को जल्दी जाना है तो यू नीड टू कंक्लूड, ओके। नेक्स्ट इज डोंट इंटरप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा बोल रहा है तो लेट देम कंप्लीट फर्स्ट, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड लिसनर कि पहले आप सुन लो, लेट देम कंप्लीट, देन कीप योर पॉइंट्स। Listen without judging or jumping on to conclusion. For example, कोई आपको कोई चीजें बोल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरी बात उसकी सुन लो विदाउट जजिंग एंड उसके जितने भी पॉइंट्स हैं सारे एंड टू एंड सुनो
एंड इन द मिडिल किसी जजमेंट पे पहुंच के, कंक्लूजन पे पहुंच के उसको कट मत करो, ठीक है। डोंट स्टार्ट प्लानिंग व्हाट टू से। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर रहा हूँ एंड आई एम अ वीक एट कम्युनिकेशन, सो आई शुड नॉट कीप प्रिपेयरिंग इन बिटवीन कि अभी मेरा नंबर आने वाला है, व्हाट शुड आई से। आप दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते हो कि आप किसी को एक्टिवली लिसन भी कर रहे हो और आप प्रिपेयर भी कर रहे हो नेक्स्ट मेरे टाइम पे मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो दीज टू थिंग्स वो आपके लिसनिंग को इंटरप्शन है। तो आप कभी भी जा रहे हो तो पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर करके जाओ, व्हाट आर योर पॉइंटर्स एंड लिसन देम केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट इज शो दैट यू आर लिसनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्नॉलेज करो कि आप सुन रहे हो। अगर आप आइडियली चुपचाप बैठ के खाली सुनते रहोगे बट आपका एक्सप्रेशंस में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, आप ना ही उनको एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ भाई मैंने सुन लिया है, सो दैट इज लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। जो स्पीकर है वो खुद इंटरेस्टेड नहीं होगा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको 4 बातें बताने के लिए सेशन कर रहा हूँ एंड यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, आई कंक्लूड एट 3 or 2, that's enough for me. Why to put extra efforts to the person who is not even interested? So that is the key points. अगर आप एक्टिव लिसनर हो, आप एक्नॉलेज कर रहे हो, तो सामने वाले आपको 4 बातें एक्स्ट्रा बताएगा, बिकॉज एवरीवन वांट टू शेयर, ठीक है। डोंट इम्पोज योर थॉट्स। 1 second. So sorry, am I audible? I was on mute. हाँ, तो डोंट इम्पोज योर थॉट्स। अगर आप खुद के थॉट्स को किसी के ऊपर इम्पोज कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। लिसन देयर पॉइंट ऑफ व्यू, शो योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अदरवाइज इम्पोजिंग में अगर सामने वाला बंदा सबमिसिव है कि वो आपको क्रॉस नहीं कर रहा है, देन इट विल बी इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। और अगर सामने वाला बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो और वो एग्रेसिव नेचर का है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कम्युनिकेशन आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती है। तो अपने थॉट्स को इम्पोज ना करके अपने थॉट्स को रखो कि दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, लॉजिकली क्या करेक्ट है, उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक है। स्टे फोकस्ड इंस्टेड ऑफ रनिंग एनीथिंग एल्स इन माइंड। मतलब अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और मेरे ब्रेन में कुछ और ही चल रहा है, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम इन अनदर वर्ल्ड। लाइक मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो फिजिकली, बट मेरे ब्रेन में थॉट में अलग ही चीजें चल रही है, तो दैट इज अ इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। और वो चीज कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं करेगी, वो ये दिखाएगी कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। और आस्क अ रिलेवेंट क्वेश्चन। और अगर आप कभी भी कोई कम्युनिकेशन में हो तो आप रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछो कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है और आपको क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, या फिर डबल चेक करो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आप ये बोलना चाहते हैं, यस दिस इज द थिंग, ओके ठीक है करेक्ट। तो सामने वाले को समझ में आएगा आप इंटरेस्टेड हो, आपको समझ में भी आ रहा है, और आपने रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा तो आपको डबल क्लैरिटी देगा वो बंदा जो भी आपको कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन रखो। कोई भी समरी होता है, कोई भी कम्युनिकेशन होता है, उसके एंड में कंक्लूजन रखो कि दिस आर माय अंडरस्टैंडिंग एट द एंड। तो अगर वहां पे कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मीटिंग रखता हूँ क्लाइंट के साथ और एट द एंड में एमओएम भेज देता हूँ, क्लाइंट रीड करके उसमें अगर कोई मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको करेक्ट कर देगा। ये चीजें सारी जगह पे वैलिड है, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो, चाहे कलीग हो, चाहे इंटरनल मीटिंग है, चाहे क्लाइंट के साथ। ये जो कम्युनिकेशन के पॉइंट्स है ये सब जगह पे सेम है, ओके। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज। सो ये सारे जो कम्युनिकेशन के पार्ट्स है दैट वाज अ बॉडी लैंग्वेज, उसमें एक ऐसा रोल प्ले करता है जो कि
बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। द थिंग इज कि मैं कम्युनिकेशन में वर्ड्स पे ध्यान दे रहा हूँ, सेंटेंस पे ध्यान दे रहा हूँ, फ्रेमिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सो बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ बिगर रोल देन अ वर्ड्स। जैसे बोलते हैं कि आई एम सेइंग यस, मैं एक्नॉलेज भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं कहीं पे इंटरव्यू देने गया हूँ, बट मैं जिस तरह से बैठा हूँ वो पॉस्चर देख के ही सामने वाला बता सकता है कि आई एम नर्वस, तो वहां पे मेरा परसेप्शन बना लेगा कि ये बंदा प्रिपेयर होके नहीं आया है, भले ही मैं टॉप रैंकर हूँ, बट स्टिल मेरा परसेप्शन उसको लेके ये रहेगा कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। सो इट इज वेरी रॉन्ग, वो मेरे लिए एट द एंड लॉस है। और अगर मैं बहुत ही ज्यादा कैजुअली होके वहां पे बैठा हूँ, इवन दो इफ आई एम सीरियस, बट मेरी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि आई एम वेरी कैजुअल, तो ही वोंट टेक सीरियसली। वो सोचेगा ये बंदा सीरियस ही नहीं है, सामने वाले इंटरव्यू को लेके, मीटिंग को लेके, या फिर जो क्लाइंट के साथ होने वाली पिच पीपीटी से जो भी चीजें हो, या फिर क्लाइंट, और आप कैजुअल अप्रोच दिखाओगे तो वो बंदा कभी भी आपको फॉर्मल या सीरियस नहीं समझेगा, और ना ही वो आपको एंटरटेन करेगा। ठीक है, सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज आप किस तरह से कर सकते हो इम्प्रूव। फर्स्ट इज प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस अबाउट योर करंट बॉडी जेस्चर, कि आपके बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या वीकनेसेस है। आप बैठते हो तो किस तरह से बैठते हो, आप जब बातें करते हो तो आप किस तरह से खड़े होते हो, किस तरह से वॉक करते हो, बहुत सारी माइनर माइनर चीजें। जैसे लोग मूवी में एक्टर्स को देख के उनके एक्टिंग करते हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, उस तरह से उनके वीकनेसेस भी देखते हैं कि ये बंदा जब बोलने के टाइम पे फंबल करता है, ये बोलने के टाइम पे ज्यादा हैंड जेस्चर्स यूज करता है, ये बंदा आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है, इसके शोल्डर्स प्रॉपर नहीं है, ये बंदा शोल्डर डाउन करके बात कर रहा है, शोल्डर अप करके बात कर रहा है, कॉन्फिडेंट है, कैजुअल है, वो सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। ये एक तरह से नॉन मतलब सामने वाला ना ही आपको बोल रहा है, ना ही आप उसको बोल रहे हो, बट ये ऑब्जर्वेशंस में काउंट होता है। और ये ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट स्मॉल लेवल के बंदे भले ही ऑब्जर्व ना करें, बट जो टॉप लेवल के जितने भी बंदे होते हैं, आप कभी भी बड़ी जगह पे जाओगे, वो ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपके शोल्डर्स रिलैक्स होने चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आपको सिटिंग पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, आपको स्लाइटली लीन होना चाहिए आगे के साइड, टू शो कि आप एक्टिवली सुन रहे हो सामने वाले को। इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस एंड जस्ट मैं बोल रहा हूँ, तो इट्स लाइक आई एम नॉट इन्वॉल्व, या फिर मैं इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ आपको बोलने के लिए। ठीक है, बट इन द सेम लाइक अगर मैं इन्वॉल्व हूँ, दैट मीन्स आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एटलीस्ट मैं नोडल कर रहा हूँ हेड कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, अनक्रॉस योर आर्म, जब आप अपने आर्म्स को क्रॉस करके रखते हैं इस तरह से या किसी तरह से, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, खुद एक कंफर्ट जोन में रहने को ट्राई कर रहे हो। तो दैट इज लाइक कि आप सामने वाले की कोई ज्यादा ही मतलब इंटरेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, वो एक बैड पोस्चर होता है। एंड स्माइल ऑन फेस इज लाइक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत ज्यादा ही एडवांटेजेस हैं, जिसके ऊपर 1 पेज की पीपीटी बन सकती है। कि एक स्माइल आपके बहुत सारे डिफिकल्ट चीजों को इजी कर सकती है, कि आप कितनी बेटर वे में सामने वाले को एक्नॉलेज कर रहे हो, और वेयर टू स्माइल वेयर टू नॉट। समटाइम कोई सीरियस सिचुएशन है, वहां पे आप स्माइल कर रहे हो, हाउ टू स्माइल एंड वेयर टू स्माइल, दैट इज अ डिफरेंट आर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज इन प्रेशर, आप स्माइल करके उसको सपोर्ट कर रहे हो या स्माइल करके उसका मजाक बना रहे हो। एक ही स्माइल दो चीजें डिस्क्राइब करती है, और वो आप कैसे कर रहे हो, इट्स अप टू यू। आपके इंटेंशंस क्या है और आप किस तरह से कर रहे हो, वो मैटर करता है। दैट इज अ वेरी थिन लाइन। सो ये इतनी छोटी चीज है, लेकिन इसको ये किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता है, ये एक्सपीरियंस से आता है, और ये दूसरों को देख के सीखा जा सकता है कि कोई बंदा बेस्ट प्रैक्टिस कैसे कर रहा है उस तरह से। एंड मेक आई कॉन्टेक्ट आपके बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि आप किस तरह से सामने वाले को आई कांटेक्ट बना रहे हो। तो ये जो इतनी छोटी छोटी चीजें है ना, जिसको हम कभी काउंट ही नहीं करते, इसके ऊपर इतना डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लिया जा सकता है या एक्सपर्टीज किया जा सकता है कि
आप बिना बोले बहुत सारी चीजों में ऑलरेडी एक्सेल कर सकते हो। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कि आपका प्रेजेंस मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद 100 पेजेस ऑफ पीपीटी, यू हैव read all the circulars, लेकिन एक बंदा जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट he knows how to communicate well, how to impress, he can win the match without like competing with you. ठीक है? Then next is mirror the other party. Mirror the other party means like, for example, this is like आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अगर मैं उस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, that gives you a comfort zone to speak more with me. ठीक है? इन द सेम वे आप सामने वाले की बॉडी जेस्चर को रीड करके कि वो किस तरह से स्टैंड कर रहा है, सिट कर रहा है, या फिर ये कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करके खुद को कस्टमाइज करके यू कैन क्रिएट अ कंफर्टेबल वाइब विद दैट पर्सन, कि आप वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए उसके साथ। यूज योर हैंड जेस्चर्स, कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए, और उसमें भी बहुत सारे माइनर प्रोफेशनल चीजें हैं जिसमें दिखाया जाता है कि आपको हैंड जेस्चर्स को कैसे रखना है प्रेजेंटेशन के टाइम पे। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग्स जो आप गूगल भी कर सकते हो, अदरवाइज इसके लिए हम डिफरेंट सेशंस भी रख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज हैंडशेक। हैंडशेक, आप किसी को मिलते हो तो फर्स्ट टाइम किस तरह से हैंडशेक करते हो? आपका हैंडशेक आपकी पर्सनैलिटी को अपने आप डिस्क्राइब कर देता है, सामने वाला आपका परसेप्शन बना लेता है कि हाउ वीक, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट या फिर नर्वस यू आर, सो दैट शोज। तो वो भी दिखता है। एंड स्टडी द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अदर्स, तो आपको भी दूसरों की बॉडी लैंग्वेज रीड करने आनी चाहिए, जिससे आप खुद की बॉडी लैंग्वेज भी इंप्रूव करोगे, और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज देख के भी आप बता सकते हो कि सामने वाला बंदा कितना इन्वॉल्व है और कितना एफर्ट्स आपको उस पे मारने की जरूरत है या फिर नहीं जरूरत है। ठीक है? नेक्स्ट इज नो योर मैसेज एंड ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, आप किससे बात करने जा रहे हो, अगर आप उसको जानते हो, उसके बारे में जानते हो, तो आपके पास बहुत सारी चीजें होगी बात करने के लिए या बोलने के लिए। बट अगर आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो, हु इज, आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं होगा डिस्कस करने के लिए, आप कभी बात ही नहीं कर सकते, आप कभी कम्युनिकेशन इनिशिएट ही नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, मैंने इसका लिंक्डइन प्रोफाइल लिखा है, मुझे उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर अभी के टाइम पे वो बंदा कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें पता है, तो आई कैन डिस्कस। और वो बंदा खुद भी मुझसे बात करना चाहेगा बिकॉज मैंने उसके बारे में स्टडी करी है। सेम गोज विद क्लाइंट, सेम गोज विद योर कलीग्स, कि कोई बंदा है जो कि बहुत ही एक्सेल कर रहा है और मुझे उससे सीखने की जरूरत है बहुत सारी चीजें, एंड आई वांट टू कम्युनिकेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नो दैट पर्सन, कि मैं उसके बारे में रिसर्च करूँ, उसके बारे में फीडबैक लूँ, देन मैं उसके पास जाऊँ, एंड देन आई विल से कि मैंने आपके बारे में देखा है, आपका एजुकेशन ये है, आपकी बैकग्राउंड ये है, आपने ये सारी चीजें अचीव करी है। दैट पर्सन विल बी मोर इंटरेस्टेड टू शेयर अ नॉलेज विथ यू, इंस्टेड ऑफ कोई बंदा आके खाली फेवर में रिटर्न में आपसे हेल्प मांगता है कि प्लीज मेरे को ये चीज में हेल्प कर दो। माइट बी आई एम हेल्पिंग इन नेचर, में आपको हेल्प कर दूं, बट आई विल नॉट गिव यू अ, दिस इज अ वेरी बेसिक एंड माइनर चीज जो आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड ऑल्सो कि अगर आप प्रेजेंट करने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि वो जो बंदा है वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। अगर वो किसी कंपनी का सीईओ है, कोई टॉप मैनेजमेंट का बंदा है, उससे आप कॉम्प्लेक्स चीजों में बात कर रहे हो, बैंकिंग के जार्गन्स की बात कर रहे हो, ये सारी चीजें के वर्ड्स यूज कर रहे हो, टर्मिनोलॉजी उसको समझ में आती है, दैट इज अ गुड थिंग। बट आप किसी फ्रेशर को ट्रेनिंग दे रहे हो और उससे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस के बारे में बात कर रहे हो, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि सामने वाला बंदा कितना डाइजेस्ट कर सकता है, उसको कितना नॉलेज है, एंड देन ओनली स्टार्ट कि अब आप सिखाओ किसी को। ठीक है? सो दैट इज द थिंग। ये सारी चीजें आप पहले ऑब्जर्व करो कि आप किसके साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हो, देन स्टार्ट। नेक्स्ट इज आस्क क्वेश्चंस। बिना क्वेश्चन पूछे आपको कभी भी ना ही अश्योरिटी होगी कि सामने वाले को समझ आ रहा है, ना ही आपको ये समझेगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड है या फिर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। आस्किंग अ क्वेश्चन इज अ मस्ट टू कंटिन्यू द conversation and complete the communication. Okay. Next is be clear and conscious. आपको कभी भी आप किस टॉपिक के बारे में
सेशन ले रहे हो, किस टॉपिक के बारे में लोगों से बात कर रहे हो। वो कभी कभी हम स्टार्ट किसी और टॉपिक के लिए करते हैं लेकिन एट द एंड वो ट्रैक से हट जाता है। तो यू हैव टू बी ऑन ट्रैक, यू हैव टू बी क्लियर माइंडसेट कि मेरे को ये कम्युनिकेशन को कंक्लूड कैसे करना है, व्हाट आई नीड टू से, मैं किस लिए ये कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, व्हाट इज माय पर्पस। और फर्स्ट वो कंप्लीट करो, देन इफ यू हैव इंटरेस्ट तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पहले प्रायोरिटीज को फुलफिल कर लो। एंड नेक्स्ट इज पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। आप कभी भी किसी के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पूरी तरह से सुन लो, टेक अ पॉज, देन रिस्पॉन्ड। किसी ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, यू डोंट नो एनीथिंग, टेक अ पॉज, give them a answer that I don't know about these things, I'll read on this, I'll come back to you, instead of just आप silent हो जाओ, fumble करो या wrong answer देने का try करो। It's better just take a pause and उसको explain कर दो that you'll come back, okay। and framing your messages, for example आप किसी को email लिख रहे हो या फिर कोई statement दे रहे हो, conclusion वाला statement या anything, उसको पहले से फ्रेम कर लो कि उसका इम्पैक्ट कैसे जाने वाला है, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका मतलब क्या निकलने वाला है, आपने कौन से वर्ड्स चूज करे हैं। दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड कर पाओगे कि एग्जैक्टली सामने वाला आपको कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज ऑलवेज प्रिपेयर इन एडवांस। हमेशा प्रिपेयर होके जाओ। इन बिटवीन आप अगर दिखाते हो कि आपने पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं करा है या लास्ट मिनट आप कुछ फिनिश कर रहे हो, दैट शोज यू आर अनप्रोफेशनल और आपने वो सारी चीजों को प्रायोरिटीज नहीं दी है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज अ मस्ट, कि विदाउट प्रैक्टिस आप कितना भी लर्न कर लो, कितना भी नॉलेज गेन कर लो, कितने भी डिग्री हासिल कर लो, बट आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, यू कांट परफॉर्म वेल। तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। आप जितना भी प्रैक्टिस करो काम है। प्रैक्टिस इज द ओनली की। जिस तरह से आप कि आप पहले तो लोगों से कॉन्वर्सेशन करो, अपने फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन करो, बट वो बहुत टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि स्टार्टिंग में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो माय सजेशन इज कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो और खुद को ऑब्जर्व करो कि आप कैसे बोल रहे हो, कहाँ पे फंबल कर रहे हो, और खुद से आई कांटेक्ट बना के पहले बात करो। जब आप खुद से आई कांटेक्ट बना के बात कर लोगे, देन नेक्स्ट लेवल इज आप दूसरों के साथ आई कांटेक्ट बना के बात कर सकते हो। बट आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि मिरर में आप खुद के साथ आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो क्रैक करो, देन नेक्स्ट लेवल अपने आप आपका वेट कर रहा है। नेक्स्ट चीज, राइट डाउन व्हाट यू थिंक। अब जो भी चीज बोलने वाले हो उसको पहले पेपर पे लिख लो। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, उसको पेपर पे नोट डाउन कर लो। बिकॉज आप पहले स्टार्टिंग में ही सोचोगे कि मैं ऑन स्पॉट स्टेटमेंट्स बना के उसको बोलूं या फिर प्रेजेंट करूं, तो वो डिफिकल्ट होता है। दैट इज द नेक्स्ट लेवल। पहले आप फर्स्ट स्टेप कर लो कि आप पहले राइट डाउन कर लो, देन उसके बाद उसको प्रेजेंट करो, एंड उसको आप प्रैक्टिस करते करते फिर आपको नेक्स्ट लेवल एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एफर्टलेस हो जाएगा, एंड देन यू कैन क्रिएट अ स्टेटमेंट इन बिटवीन एज वेल, ओके। और हमेशा ही आपके सीनियर्स के साथ में प्रैक्टिस करो एंड फीडबैक लो, और फीडबैक से ही आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में पहले तो आप इंटरपर्सनल मतलब खुद के साथ कम्युनिकेट करते थे, सेल्फ कम्युनिकेशन, कि आपको क्या बात करनी है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमको दिन में थोड़ा टाइम निकालना चाहिए खुद के साथ बात करने के लिए, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एंड देयर इज अ नेक्स्ट कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल, मतलब दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एंड देन नेक्स्ट इज अ स्मॉल ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, 5-10 पीपल के बीच में आप कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज अ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। एंड देन अगर उससे भी बड़े किस टीम के साथ आप काम कर कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज अ पब्लिक कम्युनिकेशन। एंड एक पूरे ऑडिटोरियम के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर कोई स्पीच प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज अ मास कम्युनिकेशन। सो ये लेवल्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज कोई बंदा अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है, बट जिस तरह से उसके लेवल्स बढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बढ़ते हैं, उनके ऑडियंस बढ़ती है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट होने को बंदे को रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं।
सो दीज आर द लेवल्स कि आप इस तरह से आपका लेवल बढ़ा सकते हो। और हर तरह की कम्युनिकेशन में आपको अलग अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कम्युनिकेटिंग विथ वन पर्सन, मुझे सिर्फ एक बंदे के साथ आई कांटेक्ट बनाना है। इफ आई एम कम्युनिकेटिंग विथ स्मॉल ग्रुप पीपल, आई हैव टू आई कांटेक्ट विथ 5 पीपल। इफ आई हैव टू कम्युनिकेट विथ 100, 500, 1000 पीपल, देन वो डिफरेंट लेवल का कम्युनिकेशन होता है। एंड देन मास लेवल इट्स लाइक जैसे कि हम कर रहे हैं ऑनलाइन, एंड जैसे मैंने बोला कि यूट्यूबर्स का कैमरा के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। दे नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड कम्युनिकेशन में अगर हम देखें तो प्रैक्टिस इज द मस्ट। और प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको इम्प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो स्पीक, बोलना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं करा होगा कम्युनिकेशन कभी, तो उनका सबसे पहला लेवल यही है कि वो जितना ज्यादा बोल सकते हैं। एंड लेटर ऑन दे हैव टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, जो भी वो फील करते हैं। लेवल 2 में पहले तो मैं बोलना ट्राई करूंगा कुछ भी जो मैं बोल सकूं, कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो माउथ के मसल्स है या फिर टंग ट्विस्टर्स है, वो क्लियर हो जाए। देन नेक्स्ट लेवल पे व्हाट यू फील, अगर आप वो एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, देन दैट इज योर नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड देन थर्ड लेवल पे स्पीक ऑन पॉइंट, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोले जा रहा हूँ बट उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, उसका कोई पर्पस नहीं है, सो लॉजिक नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा प्रैक्टिस होगा वो लेवल 1 से स्टार्ट होगा, कि पहले तो मुझे बोलना है, उसका कोई मतलब लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके ऊपर मेरे को ध्यान नहीं दे रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज लाइक मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ कि नहीं मेरे थॉट्स को इन वर्ड्स में। एंड देन थर्ड इज लाइक मेरे को किसी टॉपिक पे बात करनी है जिसका कोई इम्पैक्ट हो। एंड नेक्स्ट इज लाइक यू हैव टू मेक इट प्रेजेंटेबल, कि लोगों को याद रहे जो आपने बोला है। एंड इवेंचुअली यू हैव टू प्रेजेंट इन अ सच अ मैनर कि लोग जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके थॉट प्रोसेस है, वो विजुअलाइज कर सके। तो दिस इज द फाइनल लेवल जो मेरे को लगता है कि बेस्ट है इन कम्युनिकेशन की। जो चीज मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ एंड मैं सामने वाले को कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि सामने वाला भी विजुअलाइज कर सकता है। सो दैट इज द फाइनल लेवल मेरे हिसाब से। सो गाइज लाइक मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है और इसमें आई थिंक बहुत सारी और चीज़ें ऐड हो सकती थी, बट स्टिल हमारे पास टाइम कम था तो मैंने इतना प्रिपेयर किया। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। सो नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है इसमें, या फिर किसी के टेक अवेज है जो बता सकते हैं, या कोई सजेशंस जो मैंने मिस कर दिया या फिर आपको इम्प्रोवाइज कर सको आप, तो प्लीज लेट मी नो इन शॉर्ट। फटाफट। इवन दो अगर आपको मतलब समझ आ गया है सब कुछ, तो भी आप ओके बोल सकते हैं, देन वी कैन कंक्लूड हियर। सो एटलीस्ट आई कैन नो कि मुझे कंक्लूड करना है। एनीवन? Deep, do you have any questions? एटलीस्ट ये सेशन हेल्पफुल था कि नहीं था वो भी बता सकते हो आप लोग, कि इसमें कोई वैल्यू एडिशंस आपको हुआ, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पता थी या ये सेशन के बाद आपको पता चली, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, एनीथिंग? सो गाइस यहाँ पे जो लाइव बैठे वो लोग सजेशंस तो दे रहे हैं मुझे, बट ऑनलाइन वाले आई थिंक डन हो गया। तो नॉलेज हब की टीम से कोई है तो आप प्लीज सजेस्ट कर दो, फीडबैक फॉर्म प्लीज शेयर कर दो एंड जस्ट लेट मी नो।
last time मैं पूछ अच्छा नहीं पता sorry. Whereas last time it's like any questions please let me know so I can conclude. So जिसको जिसको कोई questions नहीं है वो quit कर सकता है. I am there for 2 minutes. उसके बाद मैं conclude कर दूंगा. Okay. Thank you all for joining and giving your time.